आज हम एक नया टॉपिक देखने वाला है बेटा। द टॉपिक इज कॉल्ड एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर्स, ओके। सो एज्यूम दैट यू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ बोल रहा है क्या बेटा कोई? एज्यूम दैट यू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, The ओके। recording. हाँ, रिकॉर्डिंग दूसरा जगह हो रहा है बेटा, कोई बात ओके। मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू हैव टू लाइंस, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ओके। सो मान लीजिए लाइन 1 का इक्वेशन मिल गया आपको, समथिंग इज इक्वल टू 0। लाइन 2 का भी इक्वेशन मिल गया, ओके। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइन्स। ऑब्वियसली दोनों लाइन्स, इफ यू टेक टू लाइन्स, you have an acute angle between them, you have an obtuse angle between them as well. These two acute angles will be equal, these two obtuse angles will be equal as well. So how many angle bisectors will be there for these two lines? So 4. 4 नहीं है, 2। देखिए, 2. there will be one angle bisector like this as well. This is one line and this is the other line, okay. There are two angle bisectors. This is angle bisector 1, this is angle bisector 2, okay. So every pair of lines have a pair of angle bisectors. Is it clear? Every pair of lines Sir, have, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर. okay, have a pair of, आप दिख रहा है बेटा, angle bisectors, okay or not? So if you have two lines, you will have two angle bisectors. Clear? Now as you can see, these angle bisectors will always have a property that the angle between the angle bisectors will always be 90 degrees. ये क्यों, किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स, angle between angle bisectors is always equal to 90 degrees. Can someone see the logic behind this? देखिए, लाइंस के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है. वॉट एवर द एंगल माइट बी बिटवीन द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर्स विल ऑलवेज बी एट 90 degrees to each other. Can anybody say some logic of why this is happening? So you can very clearly see this is alpha. If this is alpha, this is also alpha because this is the angle bisector. If this is beta, this is also equal to beta as well, because the second line is the angle bisector. So can you see that 2 times alpha plus beta equal to 180 degrees? Yes or no? 2 alpha plus 2 beta 180 degrees होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. So alpha plus beta is equal to how much? 90 degrees, okay. Clear? So alpha plus beta is nothing but the angle between the angle bisectors, yes or no? दिख रहा है आपको? Angle between the angle bisectors is alpha plus beta will always be equal to 90 degrees, okay. समझ में आया? Yes, sir. Now the question is how to find angle bisectors equations. How to find angle bisector equations, that's the question which you are going to solve, okay. Clear? So shall I go to next page? We'll do it in a fresh page. सर रुकिए सर. हाँ, नोट कर लीजिए.
ओके सर, हो गया। ओके ओके, आप ध्यान दे दीजिए। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, x axis, y axis. So first, before going into that equations, let us take this line. Okay, let us say that this is one line. Okay, this is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Okay, so as you know, every line divides the Cartesian plane into two parts, first part, second part, as well. So how do you differentiate the first part and second part? Is there some property which is satisfied by first part? Is there a different property satisfied by the second part? Mathematically, how do you differentiate these two parts? बोल सकते हैं? Mathematically, how do you differentiate these two parts? इसका मतलब है एक पॉइंट मैं देता हूं, वो पॉइंट फर्स्ट साइड में है या सेकंड साइड में है, वो कैसे पता चलेगा? L1 greater than 0, L2 less than 0. हाँ, एक तरफ कोई भी लाइन का ऑन द लाइन पॉइंट्स, इफ यू सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यू विल गेट इक्वल टू 0. One side will be the greater than 0 side, the other side will be the less than 0 side. Okay, सर इन इक्वालिटी में बोले थे सर आप। हाँ, इनइक्वालिटीज में बोला था ना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सो लेट c1 बी ग्रेटर देन 0. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कांस्टेंट जो है, बाकी नंबर्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है. सो लेट अस से दैट आई नो दैट c1 इज पॉजिटिव. ओके, सो विच साइड विल बी द पॉजिटिव साइड, विच साइड विल बी द नेगेटिव साइड, बोल सकते हैं? 1 will be positive and 2 will be negative. क्यों बेटा? ओरिजिन वहां पे लाई कर रहा है। हाँ, ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट किया तो c1 आ रहा है ना, विच इज अ पॉजिटिव नंबर. सो ऑरिजिन विल बी द पॉजिटिव साइड, the side not containing the origin will be the negative side. Okay, clear hai? So if you have one line, you will have a positive side corresponding to that line and a negative side corresponding to that line. Is it clear? समझ में आया? Yes. So let us say that you have another line. This is my L2. Okay, this is given by a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and let us say that c2 is also greater than 0. Now corresponding to the line L2, which will be the positive side, down or up? Which will be the positive side, which will be the negative side? Down side will be positive. and हाँ, so यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है ना, c2 पॉजिटिव है, so origin will lie in the positive side, non origin will lie in the negative side. Okay, so corresponding to the line L2, okay, so this will be the positive side and that side will be the negative side. Okay, clear? So now these two lines L1 and L2 is dividing the Cartesian plane into four parts. ऐसा ना, अब आपको चार पार्ट दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जैसे चार पार्ट्स दिख रहे हैं corresponding to these two lines. Okay, so now how do you characterize these four different parts? मेरा एक सजेशन है, द फर्स्ट पार्ट, जो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव साइड. ऐसा नो, ये फर्स्ट पार्ट में लाइन 1 के तरफ से भी पॉजिटिव साइड है, लाइन 2 के तरफ से भी पॉजिटिव साइड है, राइट? ऐसा नो. सो ये सेकेंड पार्ट में, नाउ वी कैन से दैट दीज आर समथिंग लाइक क्वाड्रेंट्स. यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स, राइट, with respect to these two lines L1 and L2. So second part में आप ध्यान से देख सकते हैं, what is the sign corresponding to L1? L1 का corresponding negative sign है, L2 के corresponding positive side है. So clear or not? Okay or not? समझ में आ रहे? Yes. So in the third part, can you see that
The first line also gives me negative number, the second line also gives me negative number, so this can be thought of as a minus minus quadrant. And fourth quadrant is positive corresponding to line 1, negative corresponding to line 2. okay, so जैसा x एक्सिस 4 क्वाड्रेंट्स, x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स करते हैं ना, जिसमें भी ऐसा ही साइंस आता है ना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसा, राइट? Similarly, any two lines will divide the Cartesian plane into 4 parts, and the 4 parts can be characterized by the signs of the expressions that you get when you substitute any point on this quadrant on these lines. okay, clear or not? ये पहला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. okay, now let us try to find the equations of angle bisectors. okay, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. देखिए, मान लीजिए ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मुझे. This is one angle bisector, right? What is the locus definition of angle bisector? What is the locus definition of angle bisector? Angle bisector के ऊपर जो points है वो effectively क्या condition को satisfy करते हैं? What are the points? What is the general condition which each and every point on the angle bisector satisfies? मान लीजिए एक पॉइंट लेता हूं मैं, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंगल बाइसेक्टर में होगा या नहीं होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन बाय विच वी कैन डिसाइड वेदर ए पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर और नॉट? डज इट डिपेंड समथिंग ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये दिख रहा है आपको? Can you see it? Angle bisector is nothing but the collection of points which are equidistant from both the lines. समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. So angle bisectors are nothing but the collection of points which are equidistant from both the lines. ऐसा नो, मतलब वो पॉइंट से लाइन 1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, राइट? ऐसा नो. सो इफ h, k is a point on this angle bisector, what is the condition that this h, k has to satisfy? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है ना आपको? a1h प्लस b1k प्लस c1 बाय रूट ऑफ a1 square plus b1 square. This is, what is this? This is the perpendicular distance of h, k from line 1. This should be same as a2h plus b2k plus c2 by root of a2 square plus b2 square. हो गया? ऐसा ना? This is the condition which each and every point on the angle bisector has to satisfy. Yes or no? समझ में आया? रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. So this will be the equation of the angle bisector. ऐसा ना? So एक बार locus में h, k के टर्म्स में अगर इक्वेशन मिल गया तो what is the equation of the locus? You just have to place x in the place of h and y in the place of y. ऐसा ना? K in the place, y in the place of k. So what is the equation of angle bisector? Equation of angle bisector is nothing but a1x plus b1y plus c1 by root of a square root of a1 square plus b1 square is equal to
a2x plus b2y plus c2 by root of a2 square plus b2 square. क्लियर or नॉट? समझ में आया या नहीं? ओके यस सर। बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। हाँ यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, एग्जांपल्स में आपको समझ में सर आ इसका कोई जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैं लिखा हूँ। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। आपको एक स्टेप में नहीं आएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इज ए डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है सर। नो, एंगल को बाइसेक्ट करना इतना इजी नहीं है, सही है क्या नहीं? सो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। ओके सो आप देखिए, एज यू नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डायरेक्टली दिस नंबर और मॉड ऑफ दिस। ये नंबर नेगेटिव भी आ सकता है ना कभी कभी, ऐसा ना? समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। सो एक्चुअली यहाँ मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस होना चाहिए। सो समथिंग लाइक यूल हैव दिस इज इक्वल टू प्लस आर माइनस ऑफ दिस। प्लस आर माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव भी आ सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन वेयर द पॉइंट इज, राइट? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होना चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई नाउ यू आर गेटिंग टू एंगल बाइसेक्टर्स। दो एंगल बाइसेक्टर्स कैसे आएगा? एक बार प्लस पुट किया तो, प्लस पुट करके सॉल्व किया तो यू विल गेट वन एंगल बाइसेक्टर, माइनस से सॉल्व किया तो यू विल गेट द अदर एंगल बाइसेक्टर। ओके और नॉट? यस सर। देखिए आप एक बार ये सॉल्व करने के बाद विल टेक एन एग्जाम्पल विच विल बी वेरी इजी। ओके सो फर्स्ट लाइन 1 बाय उसका रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल लाइन 2 बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आर माइनस। ओके सो अब आप गेस कर सकते हैं, आप दो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ऐसा ना? यू हैव टू एंगल बाइसेक्टर्स, ऐसा ना? Assume that this is the first angle bisector, this is the second angle bisector. Clear? So कोई गेस कर सकते हैं प्लस पुट किया तो फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला आएगा? If you put plus, will you get the first angle bisector or second angle bisector? Can you decide? सेकंड एंगल बाइसेक्टर। बहुत अच्छा गेस किया बेटा, कैसे गेस किया? एनी सर उसमें नेट सर उसमें हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ वो समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना, इसका मतलब h कमा k को एक लाइन पे सब्स्टिट्यूट किया तो पॉजिटिव नंबर आएगा, दूसरे लाइन पे सब्स्टिट्यूट किया तो नेगेटिव नंबर आएगा। सो दोनों को इक्वेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस डालना पड़ेगा, है सर? सो माइनस विल गिव यू द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन। अगर प्लस इक्वेट किया तो आपको सेकेंड एंगल बाइसेक्टर आएगा। समझ में आ रहे? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. So if C1 and C2 are both greater than 0, plus is equal to plus will give you angle bisector of angle containing origin. समझ में आ रहा है? This is the English description of what you are seeing here. देखिए ये चार एंगल्स है, कौन से एंगल में ऑरिजिन है? ये वाला एंगल पे ऑरिजिन है ना। C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0 किया, इसका मतलब क्या है? वी हैव ब्रॉट द ऑरिजिन ऑन टू द प्लस प्लस साइड, ऐसा ना? C1 C2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मेरा ऑरिजिन कहाँ है? पॉजिटिव साइड में है ना, राइट? यस सर। So we Yes, have sir. brought origin onto the positive region. So
प्लस इज इक्वल टू प्लस इक्वेट किया तो आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन आएगा। प्लस इज इक्वल टू माइनस से इक्वेट किया तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन आएगा। समझ में आ रहे या नहीं? एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। अगर ये नोट किया तो बोलिए एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल लगेगा आपको। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो अलग वो समझाइए तो कैसे वो प्लस करने से मतलब प्लस करने से सेकंड वाला लाइन देखिए इक्वेशन आएगा। बेटा, एक्चुअली ये फर्स्ट सेकंड जो है इट इज नथिंग बट, देखिए ये फर्स्ट जो है दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन है सर। देखिए ये दोनों एंगल्स में ऑरिजिन नहीं है, देखिए ऑरिजिन यहाँ है ना, तो सेकंड एंगल बाइसेक्टर इज यस नथिंग सर। बट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन, राइट? When we made C1 and C2 positive, we have indirectly brought our origin into plus plus region है सर। ये समझ में आ रहा है? ऑरिजिन को हम प्लस प्लस रीजन में लेके आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सो फॉर एग्जाम्पल टेक द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर। अब ये पॉइंट H का के जो है कौन सा रीजन में है? प्लस माइनस रीजन में है, या इस तरफ है तो माइनस प्लस रीजन में है, राइट? इसका मतलब ये पॉइंट को आप पहला लाइन पे पुट किया तो जो साइन आएगा, दूसरा लाइन में पुट किया तो उसका ऑपोजिट साइन आएगा ना। सो A1H प्लस B1K प्लस C1, A2H प्लस B2K प्लस C2, दोनों ऑपोजिट साइंस होगा ना, दोनों। सो एक प्लस 9 आया तो दूसरा माइनस 9 आएगा, समझ में आ रहे? सो ये दोनों को इक्वेट जब करिएगा एक माइनस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ना, सच दैट दे विल बी इक्वल। समझ में आया या नहीं? यस सर। इसलिए प्लस इक्वल टू माइनस पुट किया तो हमको वो एंगल बाइसेक्टर आएगा जिसका एंगल में ऑरिजिन नहीं है। ओके, चलिए गो टू नेक्स्ट पेज। यस सर। 3x minus 4y plus 10 equal to 0 and 5x minus 12y minus 3 is equal to 0. Find the angle bisector. Find the angle bisectors and also classify them. And also classify them. Classify करने का मतलब क्या है? क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? कौन सा रीजन में कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑरिजिन वाला रीजन को रीजन पे लाई कर रहे हैं, कौन सा नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन का एंगल बाइसेक्टर। ओके, यू हैव टू कैरेक्टराइज देम। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? मेक C1, C2 ग्रेटर देन 0 है सर। सो फर्स्ट लाइन का C1 पॉजिटिव है या नहीं? फर्स्ट लाइन का C1 ऑलरेडी पॉजिटिव है या नहीं? Yes. सेकेंड लाइन का C1 नेगेटिव है, कैन यू से दिस? सो यू हैव टू मेक दिस C into पॉजिटिव। हाउ डू यू मेक इट? यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विथ ए नेगेटिव 1। सो सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता हूं, -5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। C1 C2 दोनों को पॉजिटिव बनाने का मतलब समझ में आया? क्लियर हो? यस सर। Yes, sir. अब C1 C2 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑरिजिन कौन सा रीजन में आ गया? ऑरिजिन प्लस प्लस रीजन में आ पॉजिटिव साइड गया। में सर। ओके, नाउ सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing origin
is nothing but 3x minus 4y plus 10 divided by, क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होगा, इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस 5x प्लस 12y प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, रूट ऑफ 169 होगा, राइट? क्लियर हो ना? सो रूट 25 का मतलब ये 5 है, रूट 169 का मतलब 13, ओके और ना? So now you just have to cross multiply. Cross multiplication किए तो 13 times 3x minus 4y plus 10 is equal to 5 times minus 5x plus 12y plus 13. ओके, समझ में आया? So सब कुछ एक तरफ लेके आइए, यहाँ देखिए कितना प्लस है, 3 है। हाँ क्या है सर बेटा, 3 होगा। प्लस 3 है ना, ओके गुड. So if you multiply this, 39x minus 52y plus 130 is equal to minus 25x plus 60y plus 15. So if you bring everything onto one direction, so कितना आएगा, 64x minus 112y प्लस 115 इज इक्वल टू 0. क्लियर है ये? दैट इज द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर. ओके और नॉट? समझ में आया? यस सर। व्हाट इज द अदर एंगल बाइसेक्टर? अदर एंगल बाइसेक्टर के लिए सिंपली इस तरफ एक माइनस डालना पड़ेगा. सो यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, सो ऑल दी साइंस विल बी रिवर्स्ड. ओके, सो 39x minus 52y plus 130 is equal to 25x minus 60y minus 15. So which implies 14x plus 8y plus 145 is equal to 0. That is the second angle bisector, not containing the origin. Okay, clear or not? सिंपल लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. What is the first thing that you need to do? C1 C2 दोनों को पॉजिटिव करना है. ओके, देन प्लस इक्वल टू प्लस will give me the angle bisector of the angle containing the origin, plus is equal to minus gives me the angle bisector of the angle not containing the origin. Okay, क्लियर है या नहीं यहां तक? यस सर। अब देखिए, Yes, sir. we have seen that the angle bisectors are perpendicular to each other, ऐसा नो? So एक बार चेक करेंगे दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या नहीं. So what is the slope of the first line? 64 by 112 into what is the slope of the second line? -14 by 8. So just check whether you're getting -1 or not. 8 ones are 14s are 14 minus 14 cancel हुआ, -1 आया. ऐसा नो? यस सर। So here you have not tried to make them perpendicular, automatically perpendicular आ गया, देखिए ऐसा नो? अगर परपेंडिकुलर नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. सो यू हैव टू चेक फॉर योर कैलकुलेशंस. ओके, इज इट ओके?
Shall I go to next page? Yes, sir. नोट किया बेटा सब लोग? ओके, नेक्स्ट पेज देखिए. नेक्स्ट देयर इज एन अनदर क्लासिफिकेशन. एक क्लासिफिकेशन है एंगल बाइसेक्टर्स का, containing origin, not containing the origin. Second classification is acute and obtuse angle bisector. ऐसा भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ. For example, if you have a coordinate system, so if you have two lines, line 1 and line 2, okay. So if you have two lines, you'll always have an acute angle and an obtuse angle between them, right? सही है. सो एक है acute angle bisector, दूसरा है obtuse angle bisector. समझ में आ रहा है? सो अगर मैं पूछता हूँ कौन सा acute angle bisector है, कौन सा obtuse angle bisector है, सो you already know how to find both angle bisectors है सर. दोनों तो आप निकाल सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन है you have to decide which one bisects the acute angle, which one bisects the obtuse angle. okay, समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन क्या है? क्लियर? So let the Yes, sir. lines be a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. okay, so first same process है, make both c1 and c2 both greater than 0. वो तो बनाएंगे हम. c1 c2 greater than 0 बनाए तो इसका मतलब क्या है? c1 c2 greater than 0 बनाया, इसका मतलब क्या है? ऑरिजिन को हम प्लस प्लस वाले रीजन पे लेके आ गए. ओके, ऐसा नो. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको ऑरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, नॉन ऑरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, वो तो आपको समझ में आ गया. सो अगर मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरा ऑरिजिन जो है एक्यूट एंगल में होगा या ऑब्ट्यूस एंगल में होगा, देन विल आई बी एबल टू फाइंड ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. ऐसा ना? देखिए, अब मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ मेरा ऑरिजिन जो है प्लस प्लस रीजन में है या सॉरी ऑरिजिन जो है एक्यूट एंगल में है या ऑब्ट्यूस एंगल में है. अगर मैं फाइंड किया हूँ मेरा ऑरिजिन एक्यूट एंगल में है, सो कंटेनिंग ऑरिजिन वाला कौन सा होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ना, राइट? ऐसा नो? समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या करने वाला? So I am going to decide whether my origin lies in acute angle or obtuse angle. Okay, समझ में आ रहे? Yes, sir. So वो डिसाइड कैसे करता हूँ मैं? ठीक है, उसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ. So that can be decided by using a1 a2 plus b1 b2 value. a1 into a2 plus b1 into b2. ओके, इसका वैल्यू से हम डिसाइड कर सकता है कि ऑरिजिन एक्यूट एंगल में है या ऑब्ट्यूस एंगल में है. ओके, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है तो ऑरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूस एंगल. ये आप माइंड में रखना पड़ेगा. समझ में आ रहे? a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आए तो ऑरिजिन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल में जाएगा. ओके, a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है तो ऑरिजिन कहाँ जाएगा?
एक्यूट एंगल में जाएगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. समझ में आ रहे? इसका डेरिवेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में डिपेंड करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके। ये वाला एंगल को हम अल्फा बोलते हैं ना नॉर्मल फॉर्म में, ये वाला एंगल को हम अल्फा बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में, सर। यस सर। अगर ये P1 है, ये P2 है, P1 है, ये P2 है। So if you convert this line into normal form, how do you convert a line into normal form? याद है या नहीं? एक लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करिएगा? -C1 नॉर्मल फॉर्म का मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसा नो? यस सर। सो हाउ डू यू कन्वर्ट अ लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म? इसको आप लेफ्ट साइड लेके आइएगा, राइट साइड में पॉजिटिव बनाना है। C1 को हम पॉजिटिव मान लिया, सो वो माइनस को मैं उस तरफ भेज दे रहा हूँ, ऐसा नो? इसके बाद डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से करते हैं ना, याद है या नहीं? दोनों तरफ रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, राइट? Yes, sir. दिस इज द नॉर्मल यस फॉर्म। सर। सो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस नंबर? cos अल्फा। cos अल्फा। व्हाट इज कॉस दिस अल्फा। नंबर? sin अल्फा, है सर। साइन अल्फा। मतलब हमारा केस में अगर इसको बीटा मान लिया तो, ठीक है, हमारे केस में इसको बीटा मान लिया ना हमने। सो फर्स्ट वन नंबर विल बी, हमको cos बीटा आ गया, हमको sin बीटा आ गया, राइट? सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए किया तो cos अल्फा sin अल्फा आ जाएगा, ऐसा नो? सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? एंगल बिटवीन दीज टू इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। एंगल बिटवीन द लाइन्स इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों लाइंस के, दोनों नॉर्मल्स के बीच में एंगल अल्फा प्लस बीटा है क्या अल्फा माइनस बीटा है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि बीटा उल्टा डायरेक्शन में है ना, बीटा विल बी ए नेगेटिव एंगल। अगर ये 120 है तो ये -60 जैसा होगा या -30 जैसा होगा, ऐसा नो? सो 120 -30 गया तो एंगल कम हो जाएगा, समझ में आ रहे? अगर ये 120 है, ये वाला बीटा -30 डिग्रीज है, डायरेक्टली दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना, दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं है ना। सो क्या करना पड़ेगा? 120 माइनस ऑफ -30। क्लियर? सो अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, राइट? इफ दिस एंगल इज, इफ अल्फा माइनस बीटा इज ऑब्ट्यूज, देन origin lies in the acute angle. Clear or not? अगर अल्फा माइनस बीटा obtuse है तो the origin will lie in the acute angle. Is it right or wrong? समझ में आया या नहीं? अगर ऑरिजिन एक्यूट एंगल में है तो ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स 90 है, बाकी दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ओके और नॉट? यस सर। सो हाउ डू यू डिटरमाइन वेदर दिस एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज? वो डिटरमाइन करने के लिए मैं cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा।
अगर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आए तो उसका मतलब क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज acute, एक्यूट. ओके, नेगेटिव आया तो obtuse, ऑब्ट्यूज. ओके, समझ में आ रहे? क्लियर? एंड ये ऑब्ट्यूज आया तो ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल, उल्टा हो जाएगा. कैन यू से दिस? सो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. सर, सो इफ यू फाइंड cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, जो आंसर आएगा that will turn out to be something related to a1 a2 plus b1 b2, जो हम यहाँ चेक कर रहे हैं ना. ऐसा ना, a1 a2 plus b1 b2 पॉजिटिव आया, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा एक्यूट होगा. सो ऑरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, उल्टा. कैन यू सी दिस? देखिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ. मैं हिंट दे दिया कैसे करना है. अगर इंटरेस्ट है तो करिए, नहीं तो ये याद रखना पड़ेगा. क्लियर? कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको डेरिवेशन मिलेगा. सो ये समझ में आया या नहीं? yes sir, Yes, sir. सो C1 C2 ग्रेटर देन 0 के साथ साथ हम एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट अगर यूज करना है, हम a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा. अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो ऑरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल. a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल. क्लियर और नॉट? इजी. सो विल गो बैक, एक स्टेप बैक करेंगे. सो नाउ आप देखिए, सो यू हैव टू लाइंस, C1 C2 दोनों को पॉजिटिव कर लिया, राइट? इसके बाद क्या चेक करना है? व्हाट शुड यू चेक? a1 a2 प्लस b1 b2 कितना आ रहा है? देखिए, -15 -48 आ रहे हैं. लेस देन 0 आया ना, ऐसा ना? a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? negative, नेगेटिव आया. इसका मतलब क्या है? a1 a2 प्लस acute angle, b1 b2 नेगेटिव का मतलब ऑरिजिन लाइज इन व्हाट? acute angle, ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल. ऐसा ना? इसका मतलब जो कंटेनिंग द ऑरिजिन वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, ये कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है? दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन. एंड ऑरिजिन कौन सा एंगल में है? ऑरिजिन एक्यूट एंगल में है. सो दिस इज विच एंगल बाइसेक्टर? acute angle, हाँ, सो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है. लॉजिक समझ में आ रहे? क्योंकि ऑरिजिन एक्यूट एंगल में है, कंटेनिंग द ऑरिजिन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. Shall I go forward? Yes, sir. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, ये अपने से करने की कोशिश कर सकते हैं. कैन यू ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ? थ्री एक्स
plus 4y minus 7 equal to 0 and 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. I want you to find the angle bisectors and characterize them also. ठीक है, I'll give you 3 minutes. सॉल्व ट्राई करिएगा सब लोग. Yes, sir. ट्राई कर लीजिए बेटा आराम से. कुछ आगे गया बेटा? तो साइमल्टेनियसली मैं भी कर लेता हूँ, चेक कर लीजिए. सर हाँ, सर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटिन्यूइंग इन 12x minus 9 equal to 0 आ रहा सर. गुड. 12x, हाँ 12x minus 9 equal to 0 सही है. बेसिकली एक लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया ना. दूसरा लाइन शायद पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, देखिए करके. सर 16y minus 19 आ रहा है सेकंड वाला. हाँ 16y माइनस. यस सर. हाँ सर मुझे वो ये आ रहा है. 2 आ गया. सो फर्स्ट वन कंटेनिंग द ऑरिजिन, सेकंड वन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन. सो एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 भी फाइंड कर लीजिए. ओके,
सो a1 a2 प्लस b1 b2 कितना आ रहा है? -18 प्लस 32 ग्रेटर देन 0 आया है सर. राइट. The origin lies in obtuse angle. So origin lies in obtuse angle. So like containing origin वाला obtuse वाला एंगल का बाइसेक्टर है, नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. क्लियर और नॉट? समझ में आया? ओके. ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So those are the extra topics that you have in straight lines. Okay. इसके बाद there is a concept called pair of straight lines. हम already देखे हैं ना. Pair of straight lines. Okay. Pair of straight lines के बारे में हम क्या देखे हैं? If you have ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is a general non-homogeneous quadratic equation in x and y. This represents a pair of straight lines if delta equal to 0. ऐसा ना? याद है लास्ट क्लास में we have seen what delta is, right? What is delta? Yes, sir. Do anybody remember determinant of? याद करना बहुत इजी है. फर्स्ट x वाला जो कोएफिशिएंट है वो लिख लीजिए विदाउट टूज. AHG. नेक्स्ट लाइन फिर इज y coefficients. what are the numbers? What are the letters in the second row? H, B, F. F, and what is the third row? G, F, C. The last three numbers. Okay. If this is equal to 0, this equation represents a pair of lines. This is what you have seen. Yes or no? But the question is, what is pair of lines? Pair of lines के बारे में ऐसा कुछ हम पढ़े नहीं है, right? So if you have a line L1 equal to 0 and you have a line L2 equal to 0, अगर मान लीजिए L1 equal to 0 is a line, L2 equal to 0 is a line. So L1 into L2 equal to 0 represents a pair of lines containing L1 and L2. Simple as that. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. वॉट इज दिस? वॉट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स. ओके. वाई इज दिस ए पेयर ऑफ लाइन्स? बिकॉज देखिए इक्वेशन कौन सा फॉर्म में है? समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0 फॉर्म में है, राइट? Yes or no? So if some number into some number equal to 0, what will we write? This implies either 2x plus 3y minus 5 equal to 0 हो सकता है और x minus y plus 2 equal to 0 हो सकता है. Yes or no? इसका मतलब my x comma y may lie on this line or this line. Yes or no? इसका मतलब है मान लीजिए ऐसा एक लाइन है और ऐसा एक लाइन है. L1 equal to 0, L2 equal to 0. So L1 into L2 equal to 0. What does this represent? This represents that either L1 can be equal to 0. इसका मतलब मेरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो सकता है. ऐसा नो? L2 equal to 0 और मेरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है. इसका मतलब effectively what does this represent? This represents the pair of these lines. समझ में आ रहा है क्या?
क्लियर है ना? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिएगा समझ में आया तो. Yes, sir. So the concept of pair of lines is as simple as this. So what is the pair of lines containing these two equations? अब ये दोनों लाइन्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई किया तो 2x² आएगा, ऐसा नो. इसके बाद x इंटू वाई, 2x इंटू माइनस वाई माइनस 2xy, 3y इंटू एक्स प्लस 3xy. सो माइनस 2xy प्लस 3xy विल गिव यू xy. इसके बाद y² का टर्म क्या आएगा? 3y इंटू माइनस वाई कितना है? माइनस 3y². इसके बाद x टर्म क्या आएगा? देखिए x टर्म कैसे कैसे आ सकता है? 2x इंटू 2 4x, x इंटू माइनस 5 कितना? माइनस 5x. सो 4x माइनस 5x कितना है? माइनस x. इसके बाद y के साथ क्या आएगा? 3y इंटू 2 6y माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5y प्लस 11y. कांस्टेंट टर्म माइनस 5 इंटू प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0. हो गया. समझ में आया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. सो पेयर ऑफ लाइन्स ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है. इज जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स. क्लियर है? इज इट? Shall I go to next page? Shall I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. So, for example, देखिए x plus y equal to 5, x minus y equal to 6. What is the equation of pair of lines? What is the equation of pair of lines? आप क्या नहीं करना है, देखिए आप डायरेक्टली x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 6 किया तो इज इट राइट और नॉट? Wrong. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा किया तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा. सो इफ यू वांट टू फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, आपको क्या करना है? x प्लस वाई माइनस 5 मतलब इक्वल टू 0 तक कन्वर्ट करना है. x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. क्लियर है? ओके. देखिए if you have individual lines, if you have individual lines, to multiply them and get the equation of pair of lines is very easy. What is the difficult part? Guess कर सकते हैं what is the difficult part? The difficult कैसे लाना है? part is to factorize the effective equation. मान लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आपने, सो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर आएगा. इसके बाद और क्या आ रहा है? माइनस 11x आ रहा है, 5y माइनस 6y माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू 0 आ रहा है. मल्टीप्लीकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट आपको मान लीजिए यू आर गिवन दिस इक्वेशन, how do you get back these two equations? That is very difficult, right? Yes or no? So that is what you need to understand. Okay, अब हम उल्टा करेंगे. देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. फाइंड द लाइन्स contained
in 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 equal to 0। ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? How many of you can solve this question? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना? नॉर्मली जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना हमको, बट दिस इज ए डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? वी यूज श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। देखिए हम यहां भी श्रीधराचार्यस फॉर्मूला यूज करेंगे। श्रीधराचार्यस फॉर्मूला याद है सबको? कोई बोल सकता है व्हाट इज श्रीधराचार्यस फॉर्मूला? एनीबडी? व्हाट इज minus b श्रीधराचार्यस plus फॉर्मूला? minus root over b square minus 4ac by 2a, 2a. right? So can we use Sridharacharyas formula for two variable quadratics? यूज कर सकता हूं या नहीं? देखिए शायद कर सकता हूं, बट कैसे यूज करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यूज करना है। देखिए मैं क्या करता हूं, 6x स्क्वायर उसको छोड़ रहा हूं, प्लस x के साथ जो भी टर्म्स हो उसको कंबाइन करता हूं। x के साथ 5y है और क्या है x के साथ, प्लस 7, ऐसा नो, आई एम कंबाइनिंग दिस टर्म एंड दिस टर्म, ओके। एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, माइनस कॉमन ले रहा हूं, 4y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3 इक्वल टू 0। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऐसे लिख सकता हूं? जो ऊपर वाला इक्वेशन है, कैन आई कन्वर्ट इट लाइक दिस? Yes. Sir. So now does Yes, this sir. look like a quadratic in x where coefficients are in terms of y? सही है कि नहीं? Yes, sir. So अब मैं क्या कर सकता हूँ, x is equal to minus b, that is minus of 5y plus 7 plus or minus root of b square। b square का मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा, 25y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 70y, 2a भी टर्म, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ 6 भी है, 24 टाइम्स 4y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3, ओके। टोटल डिवाइडेड बाय 2a इज 12, ओके। क्लियर है क्या नहीं? ऐसा नो? समझ में आया यहां तक? Yes, sir. सो अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है, देखिए जब तक ये रूट है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में रूट्स नहीं हो सकता है ना, राइट? सो विल ट्राई टू रिमूव दिस रूट। सो देखना है ये अंदर जो है, रूट के अंदर जो है, दैट शुड समहाउ टर्न आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो रूट के अंदर जो टर्म है मैं लिखने के लिए कोशिश करता हूँ। 24 इंटू 4 कितना होगा, 96, ऐसा ना, 96 प्लस 25, सो रूट के अंदर 121y स्क्वायर आ रहा है, राइट? एंड y कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके दे दीजिए मुझे। यहाँ से प्लस 70y
24 into minus 13. What is 24 into minus 13? थोड़ा सा कैलकुलेट करके मुझे दे सकते हैं? 24 इंटू माइनस 13 और 70 दोनों को कंबाइन किया तो इफेक्टिवली कितना आएगा y के साथ? कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर? माइनस 242 आना चाहिए शायद. देखिए कैलकुलेट करके. यस सर. और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? देखिए 24 इंटू 3 72 प्लस 49. व्हाट इज 72 प्लस 49? 121 है क्या? 151. 121. Okay. So does this look like something square for you? ये तो अच्छा सा देखिए 121 कॉमन लिया तो ये तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 है. देखिए कितना अच्छा सा आया. रूट किया तो क्या आएगा? 11 टाइम्स y माइनस 1 है. समझ में आया? इलेवन टाइम्स y माइनस 1 ऐसा ना. सो यहाँ पुट कर लीजिए. सो माइनस 5y माइनस 7 प्लस आर माइनस ऑफ 11y माइनस 11 बाई 12. सो एक बार प्लस किया तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू, एक बार प्लस किया तो माइनस 5y प्लस 11y 6y माइनस 7 माइनस 11 माइनस 18 बाई 12 जो है 12x हो जाएगा. ओके. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन? 12x इज इक्वल टू माइनस पुट किया तो माइनस 5y माइनस 11y माइनस 16y माइनस 7 प्लस 11 कितना होगा? प्लस 4. सो आप कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हैं. जो कैंसिल होगा इस इक्वेशन में 6 कैंसिल हो रहे. सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. in this equation 4 is getting cancelled out. 3x plus 4y minus 1 equal to 0. समझ में आ रहे दोनों लाइंस? क्लियर है दोनों लाइंस को कैसे निकालना है? देखिए समझ में आया या नहीं यहाँ तक? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ 11y प्लस 11 होगा. 11y माइनस 11 है ना बेटा. y माइनस 1 होल स्क्वायर है ना. सही है क्या नहीं? सर हाँ सर अब x का वैल्यू निकालने के बाद क्या किया सर? क्या है बेटा? नहीं नहीं, हम x का वैल्यू का मतलब है हम लाइंस का इक्वेशंस निकाल रहे हैं. एक बार x इज इक्वल टू दिस, सो 12x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेने पे 6y माइनस 18 आया.
अगर माइनस लेने पे 12x इज इक्वल टू माइनस 65 प्लस 4 आया। सो दो लाइंस हो गया ना, एक लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है, वही निकालना है ना हमको, लाइंस का इक्वेशंस निकालना है ना। यूजुअली अगर सिंगल वेरिएबल में x इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट्स होगा ना, x इक्वल टू कुछ नंबर्स आएगा, बट अभी कोएफिशिएंट्स y के टर्म्स में है ना, सो x विल बी इन टर्म्स ऑफ y, वही लाइन के इक्वेशन है ना। x अगर लीनियर इन टर्म्स ऑफ y है तो दैट इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। समझ में आया? आगे जाओ। Yes, sir. Yes, sir. सो अगर लाइंस, इंडिविजुअल लाइंस दिया तो मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, पेयर ऑफ लाइंस दिया तो उसको फैक्टराइज करके यू कैन गेट द इंडिविजुअल लाइंस ऑल्सो। बट आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, देखिए ये दोनों, ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आया, दिया मैंने, आई लेट मी आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ दो लाइंस होगा ना इसमें, वो दोनों के बीच में एंगल चाहिए मुझे, ओके? सो मुझे क्या करना पड़ेगा थियरेटिकली, अगर एक प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग, सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू सॉल्व दैट इफ आई वांट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। सो आप फैक्टराइज किया, दो लाइंस आ गया। सो वंस यू हैव टू लाइंस, यू हैव टू स्लोप्स, एक स्लोप दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं, m1 m2 निकाल सकते हैं क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सो एक बार m1 m2 आपके पास है तो एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हैं या नहीं? Yes, sir. सो दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस है सर, नो? सो हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करेंगे टू गेट सम स्पेसिफिक वैल्यूज, जैसे एंगल्स के बारे में, ठीक है? इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसका लाइंस का, इसके अंदर जो लाइंस है उसका स्लोप्स चाहिए सिर्फ मुझे, इफेक्टिवली पूरा लाइंस नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये दो लाइंस जो होता है ना उसका सिर्फ स्लोप्स चाहिए मुझे, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्या नहीं? दैट्स दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, ओके? सो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। सो नाउ माय एम इज टू फाइंड, टू एनालाइज slopes of lines, to analyze slopes of lines, okay? स्लोप से एंगल भी आ जाएगा ना, स्लोप्स एंड एंगल बिटवीन लाइंस, ओके? सो फर्स्ट ध्यान से देखिए, लेट अस मेक इक्वेशन सिंपलर, ध्यान दे दीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x minus 2y equal to 0. This is case 1, this is case 2, okay? Line 1, line 2, line 1, line 2. So ये दोनों लाइन्स का करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन कैसे निकालिएगा आप? हाउ डू यू फाइंड द पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा नो? सही है? सो ये दोनों लाइंस का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन कैसे निकालिएगा? 2x प्लस 3y इंटू 3x माइनस 2y, ऐसा नो? इक्वल टू 0, सही है कि नहीं?
What is the difference between these two lines and these two lines? Can you see what the difference between these two lines is? These two cases is, case 1 में you have general lines which are not passing through origin, yes or no? These are lines which are passing through origin, yes or no? समझ आ रहे? तो इसे रेस्पॉन्ड भी करते रहिए. Yes. ये क्या है? देखिए ये वाला पार्ट तो सेम रखा हूं मैंने. The x and y part determines what? Determines the slope of the lines, right? The x and y part determines the slope of the lines. The constant determines the position of the line, right? So these two lines are passing through origin. These two lines are not passing through origin. So if you find the pair of lines equation, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों को मैं इसको और इसको पेयरिंग कर रहा हूँ. 2x plus 3y into 3x minus 2y minus 5 times 3x minus 2y minus 6 times 2x plus 3y plus 30 equal to 0 लिख सकता हूँ, ऐसा ना? So what I'm trying to show you is this part. क्या है बेटा? जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं थोड़ा सा ग्रुपिंग करके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना. ये दोनों को ग्रुप मान लिया मैंने. दिस इनटू दिस, ऐसा नो, प्लस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 4 टर्म सारा आएगा, राइट? समझ में आ रहे? सो दोनों मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 4xy प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर. इसके बाद प्लस लीनियर एंड कांस्टेंट इक्वल टू 0. समझ में आ रहे? देखिए ये सारा मल्टीप्लाई किया तो आपको लीनियर टर्म्स आ रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म है. Can you see this? So when you multiply two lines, the quadratic part of the pair of lines comes from the xy part of the individual lines. Okay? The linear and constant term depends on the numbers that are given here. 5 and 6 पे depend कर रहा है ना, ऐसा ना? ये numbers 5 and 6 पे depend करेगा, ये वाला पार्ट जो है. बट ये वाला पार्ट जो है, जो क्वाड्रेटिक पार्ट है, दैट डजंट डिपेंड ऑन 5 and 6. कैन यू सी दिस? इस लाइंस का भी सेम आएगा वो क्वाड्रेटिक पार्ट. 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0. इसका भी सेम आ रहा है क्वाड्रेटिक पार्ट, ऐसा नो? कैन यू सी दिस? क्योंकि what I'm trying to show you is the quadratic part determines the slopes of the lines. क्योंकि slopes का सारा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है, ये क्वाड्रेटिक पार्ट के अंदर ही है. कैन यू सी दिस? मान लीजिए क्वाड्रेटिक पार्ट मुझे पता है, आई कैन एनालाइज द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, ऐसा नो? So as you can see, the quadratic part of both these lines are same. That means the slopes of the lines of both these pair of lines are same. Slopes वाला part same है ना दोनों का, ऐसा ना? Yes, sir. So अगर मुझे slopes का एनालिसिस करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस का एनालिसिस करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस भी slopes पे ही डिपेंड करता है ना, राइट? So do I need the complete equation? पेयर ऑफ लाइंस का पूरा इक्वेशन का जरूरत है मुझे सिर्फ स्लोप्स का एनालिसिस करना है? तो नहीं, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पार्ट का एनालिसिस किया तो दैट विल बी सफिशिएंट. समझ में आ रहा है कि नहीं?
Is it okay? Yes, sir. So Yes, sir. what we'll try to do now is we'll construct a simpler pair of lines equation. थोड़ा सा छोटा equation को analyze करेंगे. Okay? So analysis of homogeneous equation. Analysis of homogeneous equation, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. सिर्फ इस पार्ट का एनालिसिस करूंगा मैं. दिस इज कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन. क्यों बोल सकते हैं? व्हाई इज दिस कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन? सर डिग्री सेम है सर, 2 है सर. सबका डिग्री 2 है, राइट? समझ में आ रहे? सो इफ यू हैव ए ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. What is the difference between these two pair of lines? ध्यान से देखिए. So मान लीजिए these are the pair of lines. हटा दे रहे हैं सर, क्या है मतलब बेटा? लीनियर. सर डिफरेंस ये है सर कि उसमें से आप लीनियर यानी कांस्टेंट टर्म हटा दे रहे हैं सर. हाँ, कांस्टेंट टर्म हटा दे रखा है. इसका मतलब है, ध्यान दे दीजिए. सो इफ दिस रिप्रेजेंट्स these two parallel lines, this equation will represent the pair of parallel lines both passing through origin. अगर ये pair of lines का equation को आप origin में shift कर लीजिए, ये वाला equation बन जाएगा. समझ में आ रहा है? Can you see why this is happening? क्योंकि the lines making these two lines, these pair of lines, and the lines making these pair of lines are both parallel to each other. Yes or no? स्लोप चेंज नहीं हुआ ना दोनों का. सो ये वाला पेयर ऑफ लाइंस में जो लाइंस है, ये वाला पेयर ऑफ लाइंस में जो लाइंस है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर है. एंड इस पेयर ऑफ लाइंस में जो लाइंस है वो दोनों ऑरिजिन से पास हो रहे हैं. इसका मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ? सो इफ यू शिफ्ट दिस कर्व so that the point of intersection becomes origin, this equation will become this equation. समझ में आ रहा है? Easy or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. Yes, sir. Yes, sir. So if you are only analyzing the slopes of lines, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है. ओके. सो इस लाइन में जो, इस पेयर ऑफ लाइंस में जो लाइंस है उसका भी स्लोप m1 m2 ही होगा ना, राइट? यस सर. So we are going to analyze this homogeneous equation. Okay, so let this homogeneous equation be made up of two lines, y equal to m1x and y is equal to m2x. Okay, so इसको फैक्टराइज करने के बाद मान लीजिए दो लाइंस ये दोनों आ रहे हैं. so y minus m1x into y minus m2x इक्वल टू 0 किया तो वापस ये वाला इक्वेशन आना चाहिए क्या नहीं? अगर इस इक्वेशन का दोनों लाइंस ये है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला इक्वेशन आना है क्या नहीं? Yes, sir. So let us try multiply these two equations and let us compare it with the original equation. मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? y स्क्वायर प्लस m1 m2 x स्क्वायर, मुझे आ रहा है माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है. देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए. आर यू गेटिंग दिस? सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू लाइंस यू आर गेटिंग m1 m2 x स्क्वायर माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है. ऐसा नो? सो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम होना चाहिए क्या नहीं? दीज टू इक्वेशन शुड बी सेम, राइट? समझ में आया? सो इफ टू इक्वेशंस आर सेम देन व्हाट कैन वी डू? कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना. m1 m2 by
a should be equal to x square coefficient m1 m2 by a is equal to क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ m1 प्लस m2 by 2h, ऐसा नो, should be equal to y square coefficient 1 by b, ऐसा नो. अगर दो इक्वेशन सेम है इसका मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट शुड बी सेम, राइट. सो इफ यू कंपेयर दीज थ्री, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये दोनों को इक्वेट करिए, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी आएगा, एंड m1 m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों कंपेयर किया तो m1 m2 इज इक्वल टू a by b. So these are the most important equations in pair of lines. जैसा क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है ना, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, राइट. सिमिलरली पेयर ऑफ लाइंस का सम ऑफ द स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स हमको इक्वेशन से आ जाएगा. सर वो m1 m2 by a इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 by 2h लिखे हैं सर. हाँ, माइनस ऑफ m1, देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बाय यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स वाई कोएफिशिएंट बाय एक्स वाई कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बाय वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, तीनों सेम होना चाहिए. Is it clear? Yes, sir. So what is the thing that we have learned? अगर ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, if you have something like this, this is a homogeneous equation, this is made up of two lines. So अगर lines y equal to m1x, y equal to m2x है तो then m1 plus m2 का वैल्यू क्या होगा, sum of the slopes is, the formula is minus 2h by b, okay, and m1 m2 is a by b. These are the formulas that you have, okay. Easy है. Yes, sir. Okay beta, so we'll continue this in the next class, okay.